إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، جو ہمارے نوجوانوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، بڑا ہے، معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں، لہذا اس تعلق سے آپ سبھی کے سامنے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ معاشرے کی اصلاح، فلاح اور اس کی درستگی کے لیے ہمارے دین نے کیا تعلیمات فراہم کی ہیں، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ لہذا موضوع کو تھوڑا سا سمیٹ دیتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے۔ دو چیزوں کا جواب آج ہم کی اس نشست میں، بیٹھک میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کیوں کرنا چاہیے اور اصلاح معاشرہ کریں گے کیسے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن مقدس کو، اللہ کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، بغور مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تاریخ بیان فرمائی ہے قرآن میں، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، انبیاء آئے، وہ سب کے سب معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، خاندانوں کی درستگی کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے اور خود ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، اور ہر معاشرہ، ہر فرد جو ہے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اسٹیپس دیکھنے پڑیں گے، وہ مراحل طے کرنے پڑیں گے جو ہمارے دین نے بیان فرمائے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ہمارے دین نے اس امت کے ہر فرد کو مکلف کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں کیوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو لوگ پڑھا کرتے تھے اور اس کے مفہوم کو غلط لیا کرتے تھے، آیت کریمہ کیا ہے؟
या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जात की इस्लाह लाजिम है, तुम्हारी जात की दुरुस्तगी लाजिम है। अगर तुम अपने आप को दुरुस्त कर लेते हो, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेते हो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लेते हो, तो फिर दूसरों की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत करीमा को पढ़ा और कहा कि तुम लोग अगर ये समझते हो अल्लाह के इस फरमान की रोशनी में कि अपनी इस्लाह कर लो, दूसरों की तुम्हें कोई फिक्र ना हो और उनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो ना हो और फिर तुम कामयाब हो सकते हो, तो कहा कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए अपने कानों से सुना। आपने फरमाया कि जब बुराई होने लगे, जुल्म होने लगे, गुनाह के काम होने लगे, माशरे के अंदर बुराइयां फैलने लगे और तुम खामोश अगर हो जाओगे और बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तो करीब है कि अल्लाह ताला तुम सबको अपने आजाद के अंदर गिरफ्तार कर ले। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, और फिर तुम अल्लाह से दुआ करो और फिर तुम्हारी दुआएं भी कबूल ना की जाए। माशरे की इस्लाह, इंसान अपने आप की इस्लाह करे, लेकिन हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत में यह मतलूब और मकसूद महज नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपनी इस्लाह है, उसके बाद दूसरों की इस्लाह और माशरे की तरफ बढ़ना। उसके स्टेप्स में आपके सामने इंशाअल्लाह आगे लेकर के आऊंगा। हम ये जाने सबसे पहले कि माशरे की इस्लाह करें क्यों, हम क्यों करें। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात यह है कि माशरे की इस्लाह हम इसलिए करें कि हमारे लिए दीन पर चलना मुश्किल ना हो जाए। माशरा खराब होगा, माशरा फासिद होगा, माशरे के अंदर बुराइयां होंगी, तो फिर हमको भी दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हम भी दीन पर नहीं कायम रह सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप समझ ले कि एक शख्स है, उसके घर के अंदर मुख्तलिफ अफराद रहते हैं, लेकिन नमाजी पक्का सिर्फ एक ही आदमी है। उसमें एक शख्स नमाज की पाबंदी करता है, पढ़ता है, बाकी दीगर अफराद घर के नहीं पढ़ते हैं, तो उस शख्स को नमाज की पाबंदी करने में मुश्किल पेश आएगी, दिक्कत आएगी उसको। वहीं अगर घर के सारे लोग नमाजी हो जाए तो उस शख्स के लिए भी नमाज पढ़ना आसान हो जाए। शराब को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, चोरी छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बुराइयों को तर्क करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल इसलिए ये चीजें बनी हुई हैं कि ये माशरे का हिस्सा बन चुके हैं और माशरे में आम हो चुकी हैं ये चीजें, इसलिए इंसान को मुश्किल होता है दीन पर चलना, मुश्किल होता है नमाजों की पाबंदी करना, मुश्किल होता है हुकूकुल्लाह की परवाह करना, मुश्किल होता है बंदों के हुकूक को अदा करना। मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में बुराई चारों तरफ फैली हुई है और फिर एक दो शख्स खड़े होते हैं दीन पर अमल करने के लिए, तो उनको मुश्किलात आती हैं और फिर वो परेशानी का शिकार होते हैं। अगर हम माशरे की इस्लाह करेंगे, माशरे की दुरुस्तगी की फिक्र करेंगे, उसके फसाद को खत्म करेंगे, तो हमें भी दीन पर चलना आसान हो जाएगा, मुश्किलात का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। दीन माशरे की इस्लाह हम क्यों करें? इसलिए भी कि माशरा अगर बुराइयों की आमाजगाह बन जाए, माशरे में बुराइयां होती रहे, समाज में बुराइयां होती रहे, लोग अपनी आंखों से देखते रहें, उनको ना रोके, तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब को आम कर दिया जाता है। वही लोग अजाब का शिकार नहीं होते जो जुर्म करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो सरकशी करते हैं, वही अजाब का शिकार नहीं होते, बल्कि जो लोग तमाशाई बने हुए देखते हैं वो भी शिकार होते हैं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत वाज़ेह तौर से बयान फरमाया है। आप समझ लें, किसी भी बुराई के सिलसिले में, कोई भी समाज में बुराई हो रही है, कोई भी अमल हो रहा है, उसके ताल्लुक से तीन गिरोह बन जाते हैं, तीन गिरोह बन जाते हैं। कैसे? अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में उसका जिक्र फरमाया है। बनी इसराइलियों के ऊपर अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन उनको इबादत का दिया था, कहा कि इसमें इबादत करो, कामों से फारिग होकर के रब की इताअत और बंदगी के काम बजा लाओ और दुनिया की मसरूफियात से अपने आप को फारिग कर लो।
चुनांचे जो साहिल समंदर बस्तियां थीं, उन्होंने क्या किया, हफ्ते वाले दिन बुराई से तो रुक गए, उस दिन तो उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन वहां पर बांधना शुरू कर दिया और कुछ ना कुछ हीले बहाने से मछलियों को रोकना शुरू कर दिया, पकड़ा नहीं उनको। ये एक ऐसी चीज थी जो वाज़े अल्लाह के कानून की मुखालिफत थी। उनमें से एक गिरोह वो पैदा हुआ जो उनको समझाने लगा, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तअइदून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन क़ालू मअज़रतन इला रब्बिकुम। एक गिरोह ने उनको समझाना शुरू किया कि देखो तुम्हारा यह अमल दुरुस्त नहीं है, अल्लाह को नाराज करने वाला है और इस दिन की हुर्मत को पामाल करने वाला है, लिहाजा तुम ये काम ना करो, रुक जाओ, बाज आ जाओ। एक गिरोह तो रोकने वाला था, दूसरा गिरोह इन लोगों से जो रोक रहे थे उनसे कह रहा था, लिमा तअइदून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कि ऐसे लोगों को तुम क्यों रोकना चाहते हो, क्यों नसीहत कर रहे हो, जिनको अल्लाह ताला हिलाक करना चाहता है, जो बाज नहीं आना चाहते, क्यों तुम इनको नसीहत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, माज़रतन इला रब्बिकुम, अपने रब के पास हम इस बात को कह देंगे कि अल्लाह हमारे सामने बुराई हुई, हमने उसको रोकने की पूरी कोशिश की और हम उन लोगों में से नहीं थे जो बुराई को तमाशाई बन करके देखने वाले हों, अल्लाह हमने रोकने की कोशिश की। माज़रतन इला रब्बिकुम, अपने रब के पास हमें जाना है, रब के पास मुंह दिखाना है। तो इन समाज में बुराइयां फैली हुई हैं और हम खामोश रह जाएं, यह नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो कहा कि माज़रतन इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास हम उज़्र पेश करना चाहते हैं कि अल्लाह हमने पैगाम तेरा पहुंचा दिया, वलअल्लहुम यत्तक़ून, और दूसरा मकसद इनको समझाने का यह है, शायद कि इनके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, शायद कि इनके अंदर खौफ पैदा हो जाए। ये तरीका दिया गया है, अगर हम अपने किसी भाई की बुराई की इस्लाह चाहते हैं तो हमारे दिल के अंदर यह दर्द होना चाहिए, यह तड़प होनी चाहिए कि हमारा भाई इस बुरी राह से बच जाए, बुरे काम को छोड़ दे और फिर आखिरत के अंदर कामयाब हो जाए। यह नीयत आपकी बुराई को रोकते वक्त होनी चाहिए, दुनिया भी कोई गलत नहीं होनी चाहिए, बल्कि खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी भाई की खुलूस के साथ हमदर्दी और उसके साथ बेहतर मामला किया जाए ताकि वो उस गुनाह को छोड़ दे। एक गिरोह तो ये था जो बुराई को रोक रहा था, दूसरा गिरोह वो था जो तमाशाई बना हुआ देख रहा था, तीसरा गिरोह वो था जो जुर्म कर रहा था और मछलियों को पकड़ने के लिए हीले और बहाने कर रहा था। अल्लाह ताला ने इन तीन गिरोह में से निजात किसको दिया, किसको निजात दिया? आप लोगों को मालूम है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूई, हमने उन लोगों को निजात दी जो उस बुराई से और गुनाह से रोक रहे थे, बाकी अज़ाब का शिकार हो गए। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, और जिस काम से रोका जा रहा था उसमें वो हद से तजावुज कर गए। अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनको कह दिया कि जलीलो खार होकर के बंदर बन जाओ, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ताला ने उनको अजाब के तौर पर बंदर बना दिया। इस दुनिया के अंदर आप देखें तीन गिरोह पैदा हुए, हमारे सामने बुराई होती है और अगर हम तमाशाई बन करके देख रहे हैं तब भी नहीं बचेंगे, और हम जुर्म कर रहे हैं तब भी नहीं बचेंगे। वही शख्स बचेगा जो उस बुराई को रोकने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-अनफाल के अंदर इस बात को बयान फरमाया, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों डरो उस अल्लाह के अजाब से जो तुम में से उनको ही सिर्फ पकड़ने वाला नहीं है जो जालिम है, बल्कि वो भी पकड़े जाएंगे, उनकी भी गिरफ्त होगी जो उस गुनाह को अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसको रोकने की और उसकी इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, किसी भी जालिम बस्ती को, किसी भी बस्ती में जुल्म हो रहा है, फसाद हो रहा है, गुनाह के काम हो रहे हैं, सरकशी हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम उस बस्ती को, जुल्म करने वाली बस्ती को हिलाक नहीं करते हैं उस वक्त तक जब तक कि उसमें व अहलुहा मुस्लिहून, उसके अंदर इस्लाह करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। हम अजाब को रोके रहते हैं, इस्लाह करने वाले लोग मौजूद रहेंगे।
اللہ کا عذاب ہمارے اوپر سے ٹلا رہے گا. لیکن برائیوں کو ختم کرنے والے چپ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں اور اصلاح کرنے والے نہ رہیں تو پھر وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار ہوں گے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بستی کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا جائے. فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس بستی کے اندر ایک نیک شخص ہے جو بڑا عبادت گزار ہے, اللہ کی فرما برداری تابعداری کرتا ہے, عبادتوں میں مصروف رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابدا بہی, اسی سے شروع کرو, اسی سے عذاب کی شروعات کرو جو نیکیاں خود تو کر رہا ہے لیکن سماج کی فکر نہیں کرتا, نماز تو خود پڑھ رہا ہے لیکن اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کرتا, عبادت میں خود تو مصروف ہے لیکن دوسروں کی اصلاح کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے ابتدا کرو اس بستی کی ہلاکت کی. جب تک ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے, کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم سے رکا رہے گا اور یہ کام چھوٹ جائے گا تو پوری بستی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گی. پچھلی قوموں کے تعلق سے رب نے کیا فرمایا تھا کہ اسی لیے اصلاح معاشرہ ضروری ہے, سماج کی اصلاح ضروری ہے, ورنہ پوری بستیاں عذاب کا شکار ہو جائیں گی. اور جب کریں گے اصلاح کا کام تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان کے طرز عمل کو قرآن میں بیان کیا. برائیوں کے تعلق سے جب برائیاں ہوتی تھیں, گناہ ہوتے تھے تو یہ روکتے نہیں تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے لعنت کی, انبیاء کے ذریعے سے لعنت کرائی گئی ان کے اوپر. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللہ فرما رہا ہے لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے ان کفار کے اوپر جو گناہ کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے نہیں تھے. اللہ نے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت کی. اور وہ علماء, وہ رہبان, وہ قوم کے رہنما جو ان یہودیوں کے اندر, بنی اسرائیلیوں کے اندر تھے, جن کا کام قوم کی اصلاح تھا, لوگوں کی افراد کی اصلاح تھا, وہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اور یہاں تک کہ گناہ ان کے سامنے ہوتے تھے, روکا نہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھٹکار لگائی اور ان کو بھی عذاب کی دھمکی دی. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واقعهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون. کیا ہی بدترین کام انہوں نے کیا ہے. ان کے رہبان اور ان کے علماء یہ برائی کے کاموں کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے روکا؟ یہ جو کام کر رہے ہیں بدترین قسم کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سزائیں دی اس لیے کہ برائیاں ہوتی تھیں اور ان برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن ان کو روکنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. لہذا معاشرے کی اصلاح بے انتہا ضروری ہے, بے انتہا ضروری ہے. انبیاء کی زندگی میں دیکھ لیجئے, انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے, اس وقت کے معاشرے کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے درد کو اور ان کی دعوت کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں, بہت ساری طویل گفتگویں ہیں جن میں سے بہت اختصار کے ساتھ جو ٹو دی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں لیکن قوم آپ کے اوپر گمراہی کا بھی الزام لگاتی ہے, تانے دیتی ہے, غلط قسم کی باتیں کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا قومی انی انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں لیکن نادانو تم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہو. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, امانت دار ہوں, لہذا بات مان لو اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو. اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کی ہلاکت ہو گئی, قوم کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اور وہ قوم ہلاک و تباہ ہو گئی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر کے کہتے ہیں وَنَصَحْتُ لَكُمْ
व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन, मैंने तुम्हारी खैर खाही चाही, तुम्हारी बेहतरी चाही, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद कम करते हो। नसीहत करने वाले तो बुरे लगते हैं तुमको, जो तुम्हारा भला चाहता है उसी को तुम दुश्मन समझते हो। आज तुम्हारा क्या हाल हुआ है, अल्लाह के रात का शिकार होकर के खत्म हो गए। हजरत खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपकी बेइज्जत हुई है, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आपने नबूवत का ऐलान किया। उस जिंदगी का फर्क मैं आपके सामने भी रखूंगा। उस वक्त के हालात अरब के देखिए, कौन सी बुराई है जो उन लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। समाज माशरा बिखरा हुआ है, खानदान टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, नफरतें, अदावतें, समाजी बुराइयां उस माशरे के अंदर पूरी तरीके से मौजूद है। यहां तक के बेटियां जो अल्लाह की नेमतें हैं वो माशरा उनको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस माशरे की इस्लाह के लिए भेजा। चाहे अकीदे की इस्लाह का मामला हो, समाजी बुराइयों की इस्लाह का मामला हो, अखलाकी बुराइयों की इस्लाह का मामला हो, इन सारी इस्लाहात के लिए पैगंबरों को अल्लाह भेजता रहा, मुसलसल भेजता रहा। क्योंकि समाज और माशरे के अंदर बुराइयां ये कौमों को तबाह कर देती हैं, कौमें हिलाकत का सबब बन जाती है। इसीलिए अब कोई इस दुनिया के अंदर नबी आने वाला नहीं है, रसूल आने वाला नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी थे। अल्लाह ने मोहर लगा दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने ये जिम्मेदारी जो इस्लाह की थी, माशरे को सुधारने की थी, माशरे की दुरुस्तगी की थी, माशरे को फसाद और फितने से बचाने की थी, जो काम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ खित्तों में करते रहे, ये जिम्मेदारी अब इस उम्मत के कंधों पर डाली गई। अल्लाह अकबर। और क्या बेहतरीन तरतीब दी गई है। अगर माशरे के अंदर बुराई हो तो हर शख्स को जिम्मेदार बनाया गया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि उस बुराई को रोके। और उस बुराई को रोकने के हमारे दीन ने स्टेजेस मुकर्रर फरमाए। अगर तुम अपनी आंखों से किसी बुराई को देख रहे हो, हाथ से रोकने की तुम्हारे अंदर ताकत है, उस बुराई को रोक सकते हो तो अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको। जबान से बुराई को रोकने की ताकत नहीं है तो दिल के अंदर बुरा जानो। और ये आपने फरमाया कि वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतरीन दर्जा है। वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दलिन मिन ईमान, अगर दिल में भी बुराई को बुरा नहीं जाना तो समझ लीजिए राई के बराबर भी आपके सीने में ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर। बुराइयां माशरे में फैली हुई हैं, दिन ब दिन माशरा बुराइयों का शिकार होता चला जा रहा है। हम इसी उम्मत के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फर्द है। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी थी? कोई शख्स भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, मर्द हो या औरत हो। जाती तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर शख्स को इस्लाह का काम करना है, बुराइयों से रोकना है। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान खसारे और नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चार चीजें रखी गई हैं, उनमें से ईमान है, अमल सालिह है, दूसरों को हक बात की तलकीन है, और उस पर जो मुसीबतें आए उसके ऊपर सब्र है। तीसरे नंबर की जो चीज है वो वसीयत, हक को बयान करना और माशरे की इस्लाह करना, समाज की दुरुस्तगी की फिक्र करना। ये हर शख्स की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला सूरह बराअत के अंदर इरशाद फरमाता है, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में दोस्त हैं, अजीज हैं। ये क्या करते हैं? भलाइयों का हुक्म देते हैं, व यनहून अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं, चाहे मोमिन मर्द हो और चाहे मोमिन औरतें हों। ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, मर्द हो या औरत, हर फर्द इस बात के लिए जिम्मेदार किया गया है
कि बुराइयों से रोके और अच्छाइयों का हुक्म दे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने समाज के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और अच्छाइयों के रिवाज देने के लिए हुक्म दिया है कि तुम्हारे अंदर एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो मुसलसल इसी काम पर लगा रहे, इसी काम पर लगा रहे। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से एक गिरोह, एक जमात, एक तबका ऐसा होना चाहिए जो मुसलसल इस काम को अंजाम देता रहे, भलाइयों का हुक्म देता रहे, बुराइयों से रोकता रहे और खैर के कामों को लोगों की तरफ बुलाता रहे। अल्लाह ताला ने हुकूमतों को भी जिम्मेदार बनाया है। अगर अल्लाह किसी को हुकूमत दे, उस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है माशरे और समाज की इस्लाह की वो कोशिशें करे। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफी व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह फरमा रहा है अपने ईमान वाले बंदों के ताल्लुक से, अगर अल्लाह ताला उनको हुकूमत अता फरमाए, सल्तनत अता फरमाए, इख्तिदार दे किसी खित्ते का, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों का शेवा ये होना चाहिए कि वो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, नेकियों का हुक्म करते रहे और बुराइयों से रोकते रहें, समाज को बुराइयों के अंदर पनपने ना दें। यह हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत की मजमूई जिम्मेदारी को जिक्र फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह बताया है कि बेहतरी और खैरियत और तुम्हारी बरतरी सिर्फ इस बात में है कि तुम अल्लाह ताला के इस फरीजे को अंजाम देते रहो कि नेकियों का हुक्म करते रहोगे, बुराइयों से रोकते रहोगे। जब इस अमल से, जब इस तरीके से, जब इस तालीम को उम्मत फरामोश कर देगी, तब आप समझिए ये खैरियत नहीं है उम्मत की, उम्मत के लिए तबाही है ये कि जब वो बुराइयां अपनी आंखों से देखती रहे और उसके अंदर उसकी इस्लाह की कोई फिक्र पैदा ना हो और कोई जज्बा पैदा ना हो। माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा। माशरे की इस्लाह अगर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और यहां तक के दीन पर अमल करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, हम कर भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी गुफ्तगू मैंने आपके सामने इस लिहाज से रखी है कि माशरे की इस्लाह क्यों करनी चाहिए। आगे का जो मरहला है, आगे की जो शिक है, माशरा बहुत तवील मौजू है जी, बहुत तवील गुफ्तगू है, घंटों बोलते रहिए। आगे की जो शिक है कि इस्लाह माशरा करें कैसे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनाब। इतनी बड़ी दुनिया है जिस समाज में आप रहते हैं, कितने अफराद रहते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जॉब्स के साथ जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जहनीत के हैं, मुख्तलिफ जो है जिस जैसे औरतें और मर्दों के अंदर भी हैं। तो माशरे की इस्लाह कैसे की जाए, कहां से शुरुआत की जाए? बस शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको माशरे की इस्लाह की। अगर माशरे की इस्लाह चाहते हैं, समाज की इस्लाह चाह रहे हैं, अल्लाह का फरमान है, जिम्मेदारी है इस उम्मत की माशरे की इस्लाह। शुरू कहां से करें? एक सेंटेंस में अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो वो ये है कि मर्द और औरतें अपनी जिम्मेदारी को समझ लें और उसके मुताबिक अमल करने, माशरा साले और नेक बन जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। दो ही तो लोग रहते हैं, या तो मर्द हजरात हैं या खवातीन हैं। जब फसाद दोनों की वजह से माशरे में हो रहा है, बिगाड़ दोनों की वजह से माशरे में आ रहा है, इस बात को हम जानते हैं सब अच्छी तरीके से। मर्दों की वजह से भी माशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ है, खवातीन की वजह से भी माशरे के अंदर फसाद और बिगाड़ है। और माशरा अफराद ही के मजमूए का नाम तो है। मर्द और औरतें अपनी जिम्मेदारी समझ लें और उसके मुताबिक अमल करने लग जा, पूरा माशरा दुरुस्त हो जाएगा। इसकी तफसील जानने के लिए क्या है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जो तवील मौजू है उसको इख्तिसार के साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक इंसान का घर होता है, घर,
گھر سمجھ لیجئے یہ بھی ایک سماج کا بہت بڑا حصہ ہے. ہمارا پورا سماج گھروں پر مشتمل ہے. ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے, کسی نہ کسی گھر میں ہی رہتا ہے. ہمارے دین نے گھروں کی اصلاح پر توجہ دلائی ہے. گھروں کی اصلاح کر لیجئے. گھر کے باہر سماج میں نکلیں گے, وہ اگلا اسٹیپ ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے. یہ سماج ہے, اس میں مرد حضرات بھی رہتے ہیں, اس میں خواتین بھی رہتی ہیں, اور اس گھر میں بچے بھی رہتے ہیں. گھر کی اصلاح سب سے پہلے. گھر اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو سکون کا باعث بنایا ہے. انسان تھکا ہوا آتا ہے, پریشان ہو کر کے آتا ہے, نہ جانے کتنی ٹینشنوں کے ساتھ آتا ہے, لیکن وہ جب اپنے گھر میں آتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے, ٹھہراؤ اس کے اندر ہو جاتا ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا, تمہارے گھروں کو سکون کا باعث اللہ نے بنایا ہے. اب اس گھر کے اندر سکون کیسے قائم رہے گا؟ اس بات کی ذمہ داری مرد اور عورتوں کی ہے. اس گھر میں جو مرد رہتے ہیں اور عورتیں جو رہتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح ہو, کسی بھی گھر کی اصلاح ہو, کسی بھی سماج کی اصلاح ہو, کسی بھی طبقے کی اصلاح ہو, اس کی شروعات آپ اپنی ذات سے کریں گے. مضبوط خاندان آپ کا افراد کی مضبوطی کے بغیر نہیں بن سکتا ہے, اور مضبوط خاندان نہیں تو سماج نہیں, اور خاندان مضبوط اس وقت بنے گا جب مضبوط افراد ہوں گے, اور افراد کے اندر, فرد کے اندر مضبوطی نہیں ہے تو خاندان کبھی بھی مضبوط نہیں بن سکتا ہے. فرد کی مضبوطی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اب یہ دیکھیے, میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ گھر کا نام میں نے لے لیا ہے. مرد اور عورتوں کو میں نے ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے فرمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ابھی آپ کے سامنے میں سنانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اپنی اصلاح, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. مرد کے لیے اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کی فکر کرو, اپنی ذات کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور اپنے گھر والوں کی, اہل و عیال کی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, لکڑیاں نہیں, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرما رہا اس جہنم کے اوپر اتنے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جن کے دلوں میں رحم نہیں. غلاظ شداد, اور اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے کھینچ کر کے پھینک دیں گے, کھینچ کر کے جہنم میں سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئے گا. جو ہمارا پیر ہے, ہمارا بزرگ ہے, یہ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم, فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں, کبھی بھی نافرمانی رب کی نہیں کر سکتے, اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ان کو ذمہ داری سے کوئی روک کر کے دکھا دے. یہ گمراہ قسم کی بات ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس قسم کی بات کہہ کر کے کہ فلاں صاحب جو ہے اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ تم کو فرشتوں کے درمیان سے نکال کر کے جنت میں پہنچا دیں گے. اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذات کی اصلاح کے تعلق سے کیا کہا؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, کیا تم دوسروں کو نیکیاں کو حکم دیتے ہو
बहुत अच्छी बातें बताते हो, इस्लाह और तबलीग की बातें करते हो, खैर की बातें करते हो, वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि वतनसौना अनफुसकुम। आज समाज और माशरे में मुस्लिम जमइयतें इस्लाह की कोशिश कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं, उसके ऊपर सेमिनार हो रहे हैं, लोग इस्लाह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नतीजा जीरो और सिफत है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने आप को भूल करके लोगों को इस्लाह और तबलीग की बातें शुरू की हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, ये किसकी सिफत है? यहूदियों की सिफत है, जो अपने आप को भूल जाएं और दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। अपने आप को अमल की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने सूरह सफ में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, वो बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं। अच्छी अच्छी बातें बहुत आती है हमको, हमने बहुत स्टडी कर ली है, ये किताब पढ़ी है, वो किताब पढ़ी है, और हमारे पास नॉलेज आ गई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है लेकिन अमल के मैदान में जीरो, अमल के मैदान में जीरो। अल्लाह फरमा रहा है वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये बात अल्लाह को इंतहाई नापसंद है कि तुम वो बातें करो जिसको तुम खुद अमल ना करो। खुद की तरफ इस्लाह की फिक्र करें। सबसे पहले माशरे की इस्लाह चाहते हैं, माशरे की इस्लाह अफराद की इस्लाह पर मौकूफ है। अगर अफराद की इस्लाह नहीं है, माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती, अफराद की इस्लाह नहीं है, खानदानों की इस्लाह नहीं हो सकती, अफराद की इस्लाह नहीं है, घरों की इस्लाह नहीं हो सकती है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वो बात तुम क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमा रहा है क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न ये बेटे काम आएंगे। ये माल जिन औलाद की खातिर हम कमा रहे हैं और हराम और हलाल को तर्ज दिया हुआ है हमने, अल्लाह फरमा रहा है आखिरत में इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, जो सही सालिम दिल लेकर के आए। अल्लाह अकबर। इस्लाह फर्द की और बहुत अच्छी तरीके से इस्लाह होगी। और इस्लाह के नाम पर फर्द अगर अपनी इस्लाह करना चाहेगा तो सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करेगा। फर्द अपने आप की इस्लाह पर लगा हुआ है, अकीदा उसका फासिद है, अकीदा उसका दुरुस्त नहीं है, सारे अमाल दुरुस्त कर ले, शिर्क वो कर रहा है, सारे अमाल दुरुस्त करने के बावजूद भी उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शिर्क करने वाला कभी भी अल्लाह के यहां कामयाब नहीं हो सकता। अपनी इस्लाह की तरफ जब वो तवज्जो दे रहा है तो सबसे पहला अमल, सबसे पहली चीज जो उसको इस्लाह करनी है शिर्क के ताल्लुक से है, अल्लाह की तौहीद को अपने सीने के अंदर दाखिल करे। तौहीद क्या है उसको जाने, रब की मारिफत हासिल करे। शिर्क क्या है उसको जाने और समझे और उससे दूर रहने की कोशिश करे। इस्लाह की फर्द अपनी कोशिश कर रहा है, अकीदे की कोशिश करे, इस्लाह की कोशिश करे। उसके बाद आमाल सालिहा की कुरान मुक़द्दस बात करता है, आमाल सालिहा की तरफ आए। ये तरतीब है, यही तरतीब ख़वातीन के लिए भी है। कुरान मजीद के अंदर ख़वातीन के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर क्या सिफ़ात होने चाहिए उनको भी जिक्र किया है, क्योंकि हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर के इंशाअल्लाह चल रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ख़वातीन के ताल्लुक से उनकी सिफ़ात जो उनके अंदर होने चाहिए। सूरतुल अहज़ाब के अंदर आप ये देखें 30, 31 नंबर, 32, 33 नंबर, ये सारी आयतें ख़वातीन की इस्लाह के ताल्लुक से हैं। उनमें से एक दो आयतें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है वमन यख़ुन मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। तुम अगर परहेज़गारी के काम अख्तियार करोगी और अल्लाह ताला की ताबेदारी करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें दोहरे अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे अंदर इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अगर तुम अल्लाह की वाकई में ताबेदारी करना चाहती हो, परहेज़गारी अख्तियार करना चाहती हो, तो तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करते हुए
اپنی آواز میں لوش پیدا کرنا نہیں ہے. فالصالحات قانتات حافظات صالحہ نیک اللہ کی تابعدار اور اطاعت گزار خواتین اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ خواتین عورتوں کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے. سورہ نور کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے تعلق سے ان کی صفات اور ان میں کیا کردار ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. مرد اپنی سب سے پہلے اصلاح کرے، خاتون جو ہے اس گھر کی یہ اصلاح کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کیونکہ اس گھر میں جو بچہ جنم لینے والا ہے اس کے لیے سب سے پہلا معاشرہ اس کا گھر ہے، اور اس معاشرے کے افراد اس کے ماں اور باپ ہیں. جو کردار اپنے ماں باپ میں وہ بچہ دیکھے گا وہی چیزیں وہ سیکھے گا. اس لیے سب سے پہلے ماں باپ اپنے کردار کو درست کرے، پھر جو اولاد آئے گی اس معاشرے کو جو ماں باپ کا ہے اس کو دیکھے گی. کیونکہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ابتدا میں کاپی کرتا ہے چیزوں کی. آپ اس کو لمبے لمبے لیکچر سنائیں اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں جی. اس کو بچے کی جو عدم بلوغیت کی، بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے، اور 5 7 سال 8 سال یہ جو عمر ہے بچے کی، اس میں بچہ کاپی کرتا ہے. کاپی کرنے کے نام پر اس کو کون لوگ ملتے ہیں؟ اس کے ماں باپ سب سے زیادہ ان سے ہی واسطہ پڑتا ہے. اس کا جو کردار باپ کا ہوگا وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگا، جو کردار ماں کا ہے وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. غیر مسلموں کے یہاں پر بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی فطرت میں اللہ کی توحید ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہو رہے ہیں. وہ سب کے سب یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، نصارہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، کسی بھی دھرم کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے. ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ. میرے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو درست کریے. گھر میں 2 افراد ماں اور باپ رہتے ہیں، مرد اور عورت رہتے ہیں، یہ درست کریں کردار کو. اگر ان کا کردار درست نہیں ہوگا آنے والے بچے کا کردار درست نہیں ہوگا. جس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ صحیح رہنمائی ہو اور بچہ آگے تک کے لیے اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہو، دین کے لیے قربانیاں دینے والا ہو، دین پر چلنے کی تڑپ رکھنے والا ہو، یہ اسی وقت اس بچے کے اندر آ سکتا ہے جب ماں اور باپ اس گھر کے اندر جو رہ رہے ہیں نمازوں کی پابندی کریں گے، دین کی پابندی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. اس کے والدین، اس کے ماں اور باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یُهَوِّدَانِهِ. اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. او يُنَصِّرَانِهِ. اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں. جو بچہ ابھی فطرت اسلام پر گھر میں پیدا ہوا، اسلام اور توحید پر پیدا ہوا، اس بچے کو والدین جیسے ہوتے ہیں اس بچے کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں. بچہ جو ماحول گھر میں دیکھتا ہے وہی بن جاتا ہے. یہودیت اگر اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو یہودی بن جاتا ہے. نصرانیت دیکھتا ہے، اس قسم کے اعمال و افعال دیکھتا ہے تو پھر نصارہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچہ کاپی کرتا ہے. والدین جو کچھ کر رہے ہیں وہی کرے گا بچہ. اس لیے گھر کو درست کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے
اور اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. وَالْمَرْءُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، آدمی مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور آپ نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ عورت سے بھی اس کے گھر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کرے گا. دیکھیے، مرد کو اور عورت کے کاموں کو تقسیم کیا گیا، اسی لیے یہاں پر جو لفظ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس پر ذرا غور کریں. راعیتن، راعی کا معنی چرواہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چرواہا، جانوروں کو چرانے والا. یہ مثال، یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا آپ نے؟ اگر کسی شخص کے کھیت میں آپ کا جانور جاتا ہے، بکری جاتی ہے، بھینس جاتی ہے، کوئی بھی جانور جاتا ہے، پینالٹی کس پر پڑتی ہے؟ پینالٹی کس پر پڑتی ہے؟ مالک کے اوپر پڑتی ہے، چرواہے پر پڑتی ہے. بچے کے سلسلے میں آپ سے سوال ہوگا، بچے سے نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے کہ اس جانور سے پینالٹی نہیں پڑتی بلکہ پینالٹی اس کے مالک کو پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ ارشاد فرمایا ہے وہاں پر. بچوں کی تربیت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اور یہ زندگی کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ملی. اس زندگی کے لمحے لمحے کا رب کے یہاں پر حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کریے، کوشش کریے، اس کو سمجھیے. گھر کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، مرد اور عورت کی خود اصلاح ہونی چاہیے تاکہ جو آنے والا بچہ ہے اس کی ماں باپ کو دیکھ کر کے وہ صحیح راہ پر چلے. اللہ اکبر! یہ گھر کوئی معمولی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دائرہ مقرر فرما دیا. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے گھر پر ٹھہر جائیے، گھر کے اوپر ٹھہر جائیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مرد اور عورت کے دائرہ عمل کو تقسیم فرما دیا. مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا خاوند اور شوہر کی شکل میں ہو، کہ وہ سارے اخراجات کا ذمہ دار ہے. وہ گھر بنا کر کے بھی دے گا، گھر میں جتنا انفراسٹرکچر چاہیے وہ لا کر کے دے گا، ساز و سامان لا کر کے دے گا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. باقی اس گھر کے اندر رنگ بھرنا، اس گھر کے اندر تہذیب پیدا کرنا، اس گھر کے اندر عبادتوں کا ماحول پیدا کرنا، اس گھر کے اندر خوبصورتی لانا عورت کی ذمہ داری ہے. اس لیے عورت کو کہہ دیا گیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تمہارا دائرہ عمل تمہارا گھر ہے، تمہارا دائرہ عمل تمہارا گھر ہے. گھر کوئی معمولی شے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. گھروں میں ٹھہر کر کے کیا کرو؟ شیخ چلی اور ادھر ادھر کی کہانیاں بچوں کو سنائی جائیں، ٹی وی پر بیٹھ کر کے سیریل چلائی جائیں، اس لیے کہ بچوں کو موبائل پر بیٹھ کر کے کارٹون دکھائے جائیں. گھر میں ٹھہرنا ہے. گھر میں ٹھہر کر کے آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تذکرہ تمہیں کرنا ہے، ان کے واقعات تمہیں بتانا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات بچوں کے سامنے رکھنا ہے، اس گھر میں ماحول بنانا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. یہ آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں اور ساری امت کی خواتین کے لیے اللہ نے اصلاح کے لیے اس کو عام فرما دیا ہے. گھر میں اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی کتاب کا درس ہوگا، اللہ کی کتاب کو سمجھایا جائے گا، اللہ کی کتاب کو پڑھایا جائے گا، اللہ کی کتاب پر محنت ہوگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، سیکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ.
औरतों की जिम्मेदारी घर में ठहर करके क्या है? किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम है। औरतें घरों में ठहर करके क्या करें? अल्लाह ताला ने मर्द हजरात के ताल्लुक से क्या बयान फरमाया कि वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन तुराबि अन खलक़ लकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारी बीवियों को बना दिया है, सुभान अल्लाह, जिनसे तुम सुकून हासिल करते हो, जिनसे तुम्हें तसल्ली हासिल होती है। उस घर को मर्द के लिए सुकून का बाइस बनाएं। औरत की जिम्मेदारी घर में ठहर करके घर के माहौल को पुरसुकून बनाए। शौहर के लिए, शौहर जहां से भी आ रहा है परेशान हाल होकर के आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उस खातून की तारीफ करते हुए, जब भी शौहर उसको देख ले तो उसको खुश कर देती है। इदा सर्रहू फनज़रा इलैहि सर्रहू, उसको खुश कर देती है। अल्लाह अकबर। घर में उसको ठहरने का इसलिए हुक्म दिया गया। माशरे की इस्लाह चाहते हैं, माशरे की इस्लाह से पहले घर की, और घर की इस्लाह से पहले हर फर्द अपनी इस्लाह की कोशिश कर ले, वरना इस्लाह नामुमकिन है। और जितने प्रोग्राम्स हैं, जितनी मेहनत और जद्दोजहद हो रही है इस्लाह माशरा की, नतीजा जीरो आ रहा है। उसकी वजह यही है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक हम इस्लाह की जद्दोजहद नहीं कर रहे। बस यूं ही बस शोर शराबा है, शोर शराबा है। भाई ये प्रोग्राम हो, ऐसा और वैसा, यहां लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां इकट्ठा कर लिया। सही माने में अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो करिए शुरुआत अपनी जात से, करिए शुरुआत अपने घर से, करिए शुरुआत अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों से। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से पहले बचाओ। शौहर के लिए उस घर को पुरसुकून बनाने की जिम्मेदारी उस औरत के ऊपर रखी गई। अब फसाद औरतों की वजह से कहां आया मेरे भाइयों? कहां से आया? जब औरत ने उस जगह को छोड़ा। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत के तरीके से बनाव सिंगार करके घरों से बाहर निकल करके ना फिरा करो, मना किया। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट किया। दुश्मनाने इस्लाम यही चाहते हैं, औरत को घर से बाहर करके लाया जाए। अल्लाह का दीन कहता है घर के अंदर रहिए, तुम्हारे लिए इज्जत की जगह तुम्हारा घर है, तुम्हारे लिए महफूज पनाहगाह तुम्हारा घर है। लिहाजा उस घर के अंदर ठहरना, उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मर्द से किसी हाल में कम नहीं है। घर में रह करके जो बीवी और औरत की जिम्मेदारी है, अगर वो सही मानों में किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करे तो वाकई में मर्द से कहीं ज्यादा आगे उसकी जिम्मेदारी नजर आती है। क्यों नजर आती है? अरबी का मकूला है इन्नल मरअता निस्फुल मुज्तमा। औरत क्या है? माशरे का आधा हिस्सा है, आधा मर्द है, आधा औरतें हैं। वहिय तुरब्बी निस्फुल आखिर फहियल मुज्तमा कुल्लुहु। आधी तो माशरे की औरत खुद है, लेकिन जो आधा बचा है उसकी तरबियत भी औरत करती है। इसलिए पूरा माशरा औरत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। औरत की इस्लाह भी इंतहा जरूरी, औरत का किरदार बहुत अहम है माशरे के अंदर। जरूरत इस बात की ख़वातीन इस्लाम अपने हुकूक को समझ जाएं, अपने फ़राइज़ को समझ जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएं, उसको पूरा करने लग जाएं। अब देखिए माशरे के अंदर फसाद कैसे आता है, कैसा फसाद आता है। देखिए घरों की अगर इस्लाह सही नहीं हुई है, घरों की इस्लाह नहीं हुई है तो फसाद, अफराद की इस्लाह नहीं हुई, मतलब घर की इस्लाह नहीं हुई। जब घर की और अफराद की इस्लाह नहीं हुई तो बिगाड़ कहां से आता है? रब ने फरमाया कि घरों में ठहरी रहो। अब यही औरत जब घर से बाहर निकली है, बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी, मर्दो औरत का इख्तिलात, और उसकी वजह से ना जाने कितने फितने पैदा होते हैं, कितनी बुराइयां जन्म लेती हैं। माशरा तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। शैतान की चाल और कोशिश ये है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु
यंज़उ अन्हुमा लिबासहुमा। अल्लाह फरमा रहा है, ए आदम के बच्चों, ए आदम की औलाद, तुम्हें शैतान के ही फितने में मुब्तला ना कर दे और तुम्हारे वालिदैन की तरीके से तुम्हें जन्नत से बाहर ना निकलवा दे और तुम्हारे लिबासों को तुमसे उतरवा ना दे। लिबास उतरवाना चाहता है, लिबास से आरी करना चाहता है इंसानी जिस्म को। अब खवातीन के लिबास को आप देखिए क्या हुआ। खवातीन को इजाजत है घर से बाहर जाने के लिए, जरूरत के तहत है, शराइत के साथ है, कवायद के साथ है, उसूलों के साथ है, क्योंकि असल जगह उसकी घर है। बाहर जाएगी तो अपने आप की अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए कुरान ने क्या फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन। अल्लाह फरमा रहा है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, ए मुसलमानों की औरतों, जब तुम घरों से बाहर निकलो तो अपने ऊपर ओढ़नी डाल लिया करो, क्योंकि इससे क्या होगा फायदा, तुम्हें पहचान लिया जाएगा, अन युरफ़ना फला युज़ीन, और फिर तुम्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इस्लाम के कायदे कानून औरत की हिफाजत के लिए बनाए गए। ये एक लंबा टॉपिक है, मैं टॉपिक से अलग हो जाऊंगा, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ रहा हूं कि औरत के लिए क्या क्या शराइतें, वो सारी चीजें नहीं। औरत जब घर से निकली, शैतान चाहता है इसके लिबास को उतरवाए, तो पहले क्या हुआ, खवातीन बुर्के के साथ घरों से जाती थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जाती हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक देता है। उसके बाद शैतान ने लिबास को कैसे उतरवाया, हिजाब को उतरवा दिया। अब पर्दा उतर गया, अब जो ड्रेस है घर वाली, उस ड्रेस में औरत जा रही है मार्केट में, बाजार में शॉपिंग करने के लिए, और शादियों में जो तूफान बदतमीजी होता है, अल्लाह की पनाह, उसकी भी मिसाल आपके सामने रखने जा रहा हूं कुरान की रोशनी में। जब घर से निकली, पहले बुर्का उतारा, फिर वो लिबास जो घर के अंदर ज़ेबतन करती थी वो पहना, उसके बाद कट पर आ गया, यहां तक कट हो रहा है, और फिर इतना चुस्त लिबास हुआ और छोटा हो गया नीचे से। अल्लाह अकबर। शैतान तो यही चाह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, शैतान यही चाहता है तुम्हारे लिबास को उतरवा दे, तो धीरे धीरे कम करा रहा है वो लिबास को। जितने पीस थे लिबास के, वो लिबास के पीस कम कराए उसने, दुपट्टा खत्म हो गया। ये शैतान की चालें हैं। अब इसकी वजह से माशरे में जो फसाद और बिगाड़ आया है, अगर औरत अपने आप को दुरुस्त कर ले, माशरे के एक बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा इस वक्त फितने का सबब बना हुआ है, औरत का घर से निकलना और इस्लाम के दायरे को उलांघ करके, ये सबब बना हुआ है माशरे के बिगाड़ का, मर्दों की बेरहरवी का और जराइम का। जितने कहवा खाने हैं, जितने शराब खाने हैं, जितने आज आप देख लीजिए, मगरिबी तहजीब, मगरिबी कल्चर इसी बात को कहता है कि अपनी औरतों को बाहर लाओ, नुमाइश कराओ, और आप देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है जहां औरत मौजूद नहीं है। अब जब बाहर औरत गई ना, बाहर का माहौल खराब हुआ, अब उसने अपनी जगह छोड़ी, अपनी जगह छोड़ी, जो घर था उसका असल जगह, उस जगह को छोड़ा, तो फिर वहां पर भी फसाद पैदा हो गया। शौहर को सुकून नहीं मिलता, बेइत्मीनानी पैदा हो रही है। जो औरत मुस्तकिल अपने आप कमा रही है, शौहर की कव्वामियत को उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, फिर वो शौहर को अपने ऊपर कव्वाम नहीं समझती। रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को जो कव्वाम अल्लाह ने औरतों पर बनाया, वो वहां पर कमजोर हुआ। औरतों के घरों में झगड़े शौहर से शुरू हो गए, बच्चों की तरबियत पर असर पड़ गया, घर में सुकून, इत्मीनान, घर में चीजें जिस रख रखाव से होनी चाहिए, जो शौहर के लिए बायस सुकून होती, उस वजह से अब शौहर के लिए टेंशन है, बीवी में टेंशन है, घर का माहौल तबाह हो रहा है, बाहर का माहौल तबाह हो रहा है। ये शुरुआत यहाँ से हो रही है। हमारे दीन ने क्या कहा औरतों से, ये देखिए मिजाज देखें आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप ले लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भाग करके मदियन पहुंचे, वहां पर रास्ते में देखा, मदियन के रास्ते में वजदा उम्मतम मिनन नास यस्कून वलम्मा वरदा माअ मदियना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून। मदियन के रास्ते पर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक कुआं पड़ता है,
उस कुएं पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। देख रहे हैं ववजद मिन दूनिहिम इम्राअतैन तज़दान, दो औरतें अलग खड़ी हुई हैं, बिल्कुल मर्दों से अलग खड़ी हुई हैं, अपने जानवरों को लिए हुए। मूसा अलैहिस्सलाम उन औरतों के पास पहुंचे, मा खत्बुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, वह अबूना शैखुन कबीर, जब ये मर्द हजरात पानी पिला लेंगे तब हम पानी पिलाएंगे। अल्लाह अकबर, इस बात को आज की शादी हॉल पर फिट करके देखिए। खाना आजकल जानवरों की तरीके से खड़े तौर पर लगा दिया जाता है, आप जाइए प्लेटें लेकर के ढूंढ ढांड करके खाना लेकर के आते रहिए, और फिर औरतें और मर्दों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। एक साथ छोड़ने का नतीजा क्या होता है? मर्द तो थोड़ा शर्मा भी जाता है, लेकिन औरत साबित कदमी करती है, शफ़क़त करती है और मर्द से पहले हासिल करने की सामान कोशिश करती है। आप ये देखें, वो औरतें भी थी कुरान जिनके किरदार को बयान कर रहा है। जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, वो दूर खड़ी हुई हैं, क्योंकि माशरे को मखलूत माशरा, ये इस्लाम का नजरिया नहीं है, ये दुश्मनाने इस्लाम ने ये सोच पैदा की है। तो वो खड़ी है अलग और अपनी मजबूरी जिक्र फरमा रही हैं कि घरों से हम क्यों निकले हैं, हमारी असल जगह तो घर है, लेकिन हम घरों से क्यों निकले हैं? व अबूना शैखुन कबीर, जरूरत और हाजत यह है घर से निकलने की कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, हमारे वालिद ये काम अंजाम नहीं दे सकते। मजबूरी के तहत जब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी उनके जानवरों को पिला दिया, वो घर पर गई, अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु इन्न खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, ऐ अब्बा जान, फला नौजवान को आप उजरत पर रख लीजिए, उससे बेहतर अमानतदार नौजवान कौन हो सकता है? क्योंकि उनको लगा कि हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत घर के बाहर महफूज नहीं है, घर के अंदर महफूज है। अब ये काम जो हम करते थे, ये नौजवान उजरत पर इसको रख लिया जाए, इनको ये करेंगे। उन्होंने अपने आप को घर में रखने को तरजीह दिया, रहने को तरजीह दिया, ताकि अपनी इज्जतों को और अपने आप को महफूज कर सकें। ये हमारे दीन का मिजाज है। औरतों को बाहर किया, अल्लाह ने मना किया कि ज़माने जाहिलियत की तरीके से बनाओ श्रृंगार करके ना निकलो। जब निकलो तो वला यदरिबना बिखुमरिहिन्ना वल यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबानों के ऊपर जो है कपड़ा डाल करके, चादरें ओढ़ करके निकलो। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, और अपने पैरों को इतनी तेजी के साथ जोर से ना मारो जमीन पर कि उसकी झनकार मर्दों के कानों में पड़ जाए। अल्लाह फरमा रहा है अपनी आवाजों की भी हिफाजत करो, इसमें भी लोच पैदा ना करो, और अपनी जो जिस्म की सारे जेवर की चीजें हैं उसको भी छुपाओ, जहां तक कि खुशबू भी लगा करके ऐसी ना जाओ जो फैलती हो। ये शराइत मुकर्रर किए गए। लेकिन क्या हुआ? असल जो दायरा घर का था, यहां से अब मर्द को भी हुक्म क्या दिया गया? घर की इस्लाह के लिए मर्द को हुक्म ये दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, मन निजात या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात किस में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, निजात इसमें है कि अपनी जबान को रोक लो। अल्लाह अकबर। 3 बातें आपने इरशाद फरमाई, बड़ी प्यारी नसीहत है, इसको लेकर के जाइए खास तौर से और अपनी जिंदगी में लागू करिए इसको। मुख्तसर सी चीजें पूछा, निजात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस में है? आपने फरमाया कि अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को रोक करके रहो, बड़ों का छोटों का अदब व लिहाज रखो, जबान को सही जगह पर इस्तेमाल करो। चोरी, चुगली, गीबत और इस तरीके के बहुतान तराजी, मजाक बनाना, इस किस्म की चीजों से अपनी जबान को रोक करके रखो, जबान की हिफाजत करो। अमसिक अलैका लिसानक। दूसरी चीज आपने इरशाद फरमाई, वब्की अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रोते रहो। अल्लाह अकबर। कितने गुनाह होते हैं, कितनी नाफरमानियां होती हैं, लेकिन हमारे दिल पर जर्रा बराबर असर नहीं पड़ता, जरा भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। उसकी वजह भी कि माशरा इस कदर बिगड़ चुका है कि हमें एहसास भी नहीं होता है। आपने फरमाया कि अपने गुनाहों पर रोते रहो। तीसरी बात आपने क्या इरशाद फरमाई है? ये मेरे भाई औरतों के लिए नहीं, मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है, वलियसाअक बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। आदमी के पास फारिग औकात है,
इस नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, उस चौराहे पर बैठा हुआ है, उस दुकान पर बैठा है, इस दुकान पर बैठा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसके सिलसिले में ये कहना वो कहना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा होना चाहिए। अल्लाह अकबर, क्या लफ्ज प्यारे नबी ने इरशाद फरमाए हैं। लोगों को घरों में घुटन होती है, लोगों को घुटन होती है। आपने फरमाया कि घुटन मत समझना घरों को, क्योंकि ये तुम्हारी इज्जतों को महफूज करने वाले हैं, तुम्हारे दीन और ईमान की हिफाजत करने वाले तुम्हारे घर हैं। तुम्हारे ये घर कुशादा होना चाहिए। ये घर छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन इसको बहुत खुला हुआ हवादार कुशादा समझो इसको, क्योंकि इसी में तुम्हारी निजात है। सवाल करने वाले ने यही तो पूछा था, अल्लाह के नबी निजात किस में है? कहा कि निजात इसमें है कि अपने घर को वसी समझो। सुभान अल्लाह, जिस मर्द को घर में रहने का हुक्म दिया जा रहा है, फारिग औकात में अपने घर में वो रहे, उस औरत को कैसे अल्लाह का ये दीन इजाजत दे सकता है जिस पर बाहर की जिम्मेदारियां भी नहीं है? उसको कैसे इजाजत दे सकता है कि सिर्फ महज तफरीहन, महज शॉपिंग के लिए एक चीज को 10 बार लेने के लिए बाजारों का रुख करना, और फिर मर्दों औरतों का इख्तिलात होना और दुकानदारों से बेहिजाबाना तरीके से गुफ्तगुएं करना, ये आज माशरे का हाल है। अल्लाह अकबर, हमारे दीन ने जो रहनुमाई की है, इस घर को अल्लाह के नबी ने आगे क्या फरमाया? पहले तो ये फरमाया कि अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वसी हो, और फिर आपने आगे क्या फरमाया? आपने आगे ये फरमाया कि जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हुआ करो ना, जब अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। अल्लाह अकबर, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। अल्लाह फरमा रहा है मुबारकतन तय्यबा, ये तोहफा है घर वालों के लिए, सलामती की दुआएं दो उनको। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, रुपया नहीं है कि तुम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे सामान ले जा सको, अच्छे अच्छे खाने ले जा सको, अपने घर नहीं है, तो कम से कम दुआ, सलामती की दुआ का जो तोहफा है, इससे अपने बच्चों को महरूम ना करो। इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। सुभान अल्लाह, रब ने क्या आयत करीमा में अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, बयान नहीं किया जैसे 3 अल्फाज हैं उसके लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि घरों में जाओ, सलाम करो, माहौल पैदा करो, सुकून और इत्मीनान की ये जगह। और आपने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीसरी चीज कि जब तुम नमाज, फर्ज नमाजें मसाजिद के अंदर पढ़ा करो, इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम, यानी अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखा करो। सुभान अल्लाह, फर्ज नमाजें मस्जिद में, सुन्नत, नफिल, ये सब घरों में पढ़ा करो, कुछ हिस्सा अपने घर में पढ़ने के लिए रोक करके रखा करो। कई हदीस हैं इस बारे में, मैं आपको सब तो नहीं सुना सकता हूँ, एक पर इक्तफा कर रहा हूँ। कई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, घरों में नमाज पढ़ने के लिए कुछ हिस्सा बचा के रखो, आपके बच्चे देखेंगे, आपकी बीवी देखेंगे, घर के अंदर बरकत आएगी, रहमत आएगी, रब की नवाज़िशें होंगी, फजल होगा रब का। और चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। फ़इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअु फ़ीही सूरतुल बक़रा युनफ़िरु शैतान, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करिए, घरों में कुरान पढ़िए। क्या फरमाया? नमाजों का हिस्सा छोड़ करके घर में पढ़ने के लिए रखो तिलावत। और फिर औरतों को किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की तालीम का हुक्म दिया गया। इसी तरीके से हुक्म यह दिया गया कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद घरों में करते रहो। मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करु फ़ीही वल्लज़ी ला युज़करु फ़ीही मसलुल हय्यि वल मय्यित, उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, याद की जाती है, और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह के जिक्र को नहीं किया जाता है, मुर्दा और जिंदा की है। वो घर मुर्दा है, मुर्दा खाना है वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो। जिसमें अल्लाह का जिक्र है, उसकी याद है, वो घर आबाद है, वो फले फूलेगा, रब की रहमतें बख्शे नाज़िल होगी। आपका छोटा सा घोंसला ही क्यों ना हो, मायूस नहीं होइए।
उस घर को कुशादा समझिए, रब का शुक्र अदा करिए। रब ने सर छुपाने के लिए तुम्हें दे दिया है, ये बहुत बड़ा इनाम है रब का। मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपने घर को कैसे बेहतर बनाएं, औरतों को हुक्म दिया गया अपने घर को तुम कैसे बेहतर और अच्छा बनाओगी, क्योंकि घरों की इस्लाह समाज और माशरे की इस्लाह है। सुभान अल्लाह। अगर हम सब अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें इस्लाह की, मेरे भाई समाज में बुराई बचेगी कहां पर, कहां बचेगी। और घरों से पहले खुद की इस्लाह कर लें, कौन सा घर है जिसमें बिगाड़ होगा, फसाद होगा। हमारे घरों में टेंशनें, नफरतें, कदवरतें इस कदर फैली हुई हैं, मोहब्बतों का फुकदान हो चुका है, अदब और एहतराम खत्म हो चुका है। छोटे और बड़े के लिए क्या जज्बात होना चाहिए वो सब खत्म हो चुके हैं। ये हमारे घरों का हाल है। हम चले हैं माशरे को सुधारने के लिए। सुधारें अपने घर को और शुरुआत करें खुद अपने आप से। अमल करिए, अपने आप को मत भूल जाइए। लोगों को तो खूब प्रोग्राम करके जी तबलीग कर लिया, लेकिन अपने आप को देखा सब भूल गए। तअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम। लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। यही अल्लाह के दीन का तकाजा है, यही अल्लाह तुमसे चाहता है। समाज और माशरे की इस्लाह तभी हो सकती है मेरे भाइयों, जब हर फर्द अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं करेगा, वरना सिर्फ ये जुमले हैं, हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हो, घर जा करके बैठ रहे, मुद्दतें हो गई, लोग प्रोग्राम्स चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो लफ्ज कुरान में इरशाद फरमाया है वो देखें कितनी गहराई है उसके अंदर। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कोई हम में से है इतना जुर्रत कर सकता है कि अपनी औलाद को आग के अलाव में फेंक दे? आग की चिंगारी भी अगर बच्चे को लग जाती है, माँ बाप तड़प जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है उस जहन्नम की जरा जहन में रखो, जिसकी आग भी कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब भी वो हल्की पड़ेगी तो उसको तेज कर देंगे। ये रब का फरमान है। जब दुनिया की आग से बचाने के जतन हम करते हैं अपनी औलाद को और अपने आप को बचाने के लिए, तो जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? खवातीन हमारे यहाँ आई हुई हैं, मेरी बड़ी पुरखुलूस दरख्वास्त है अपनी माँ और बहनों से, यह जिंदगी बहुत मुख्तसर है, रब की अहकामात की रोशनी में गुजार जाइए। अमल का वक्त खत्म हो जाएगा, आंख बंद होते ही अमल का वक्त खत्म है, और फिर हमेशा की सजा है या फिर हमेशा का इनाम है। आज की मुश्किलात को बर्दाश्त कर लीजिए, गर्मियों को बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन प्यार मोहब्बत घर के अंदर दाखिल करिए। शौहर को सुकून की जगह रब ने घर बताया है, उसको सुकून फराहम करिए। माशरे का जाहिरी और बातिनी यह है, माशरे का जाहिर जब हम अपने आप को सुधार लेंगे, वही चीज हमारे बच्चे देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चों की तरबियत भी। अब एक तीसरी चीज रह जा रही है, मैं चाहता हूं कि इसको भी 10-5 मिनट में आपके सामने रख करके बात को मुकम्मल करता हूं। जब आप अपनी इस्लाह कर लेंगे, बीवी की इस्लाह हो जाएगी, बच्चा आपका आएगा, वो आपको कॉपी भी करेगा और उसके लिए आपको क्या करना है, किस चीज की फिक्र रखनी है बच्चे की तरबियत के सिलसिले में। आप 2 मिसाल खाली ले लीजिए बस कुरान मुक़द्दस से, उन पर गौर फिक्र कर लीजिए। हजरत लुक़मान हकीम, सूरह लुक़मान है कुरान मुक़द्दस के अंदर। लुक़मान नबी नहीं है, एक हकीम है। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिक्मा, हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई। लुक़मान का तज़किरा कुरान में अल्लाह ने इसलिए फरमाया है क्योंकि मुशरिकीन मक्का अरब लोग लुक़मान को जानते थे, उनकी हिकमत और दानाई की बातों से वाकिफ थे, उनके अक़वाल को कोट किया करते थे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तुम लुक़मान से बड़ी अक़ीदत है, तुमको समझते हो, जरा ये जानते हो लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत क्या की थी? या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह,
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे पहली चीज जिस पर मेहनत करने की जरूरत है, शिर्क से दूर बचाना है। ऐ मेरे बच्चे, शिर्क नहीं करना रब के साथ, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म अजीम है। और फिर नसीहत करते हैं, अल्लाह की तौहीद को समझाते हैं और अल्लाह के इल्म की वसअत को वाज़े करते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समाई औ फिल अर्दी याति बिहल्लाहु यौमल क़ियामा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। अल्लाह फरमा रहा है, लुक़मान ने कहा अपने बच्चे से, ऐ मेरे बच्चे, इस नसीहत को भी याद रखना, एक जर्रा बराबर तुमने नेकी की या गुनाह किया, चाहे वो पहाड़ की किसी भी चट्टान में किया हो, चाहे आसमानों में कहीं पर किया हो, और चाहे जमीन की किसी सतह पर, जमीन के कहीं पर किया हो, याति बिहल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे सामने ला करके रख देगा। गुनाह करते वक्त रब की अज़मत का एहसास होना चाहिए, नेकी करते वक्त रब से सवाब की उम्मीद होनी चाहिए। तुम्हारी नीयत रब की रजा, तुम्हारी नीयत रब के अज़ाब से बचना होना चाहिए। बेटे को तौहीद सिखाई है, और इसमें जानते हैं आसमान का जिक्र क्यों किया? फिजाओं में आदमी हो सकता है, आदमी कोई कहे भाई हेलीकॉप्टर पे, यहां दुनिया में गुनाह नहीं करूंगा, जमीन पर मैं हेलीकॉप्टर पे गुनाह होगा, हवाई जहाज पर होगा। अल्लाह ने फरमाया वो भी लेकर के हम आएंगे, कहीं भी गुनाह। और क्या कहा? या बुनैया अक़िमिस सलाह, देखो नमाज कायम करते रहना बेटे, ज़कात देते रहना, वअम्र बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते रहना, बुराई से रोकते रहना, माशरे की इस्लाह की फिक्र करते रहना, माशरे की इस्लाह की फिक्र करते रहना। माशरे को छोड़ना नहीं है। माशरे को अगर हम छोड़ देंगे, माशरे की इस्लाह नहीं करेंगे, तो यह माशरा हमारी भी तबाही का सबब बन जाएगा। अगर हम चाहे दीन के ऊपर कितना भी कायम रहने वाले हो, दीन पर चलने वाले हो, लेकिन हमारी तबाही का सबब यह माशरे की गुमराहियां बन जाएंगी। अगर हम यहाँ बच गए तो फिर अल्लाह के यहाँ पर भी नहीं बच सकते हैं। बेटों की, बच्चों की, औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की उस नसीहत को भी याद रखिए जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने की। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याकूब ने अपने बच्चों को नसीहत की, कहा कि ऐ मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तुम्हारी मौत इस्लाम पर आनी चाहिए, अल्लाह की फर्माबरदारी में तुम्हारी मौत आनी चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी में तुम्हारी मौत ना आए। दुनिया से जाओ तो रब की रजा हासिल करके जाओ, रब की नाराजगी को हासिल करके नहीं जाना। और इम्तहान लिया अपने बच्चों का, तौहीद का इम्तहान लीजिए अपने बच्चों से, अपने बच्चों से इम्तहान लीजिए। किस बात का? हम हर चीज बच्चों के सिलसिले में पूछते हैं, बेटा इंग्लिश की अल्फ़ाबेट सुना दीजिए, बच्चा सुना रहा है ABCD। बच्चा हिंदी की वर्ड सुना दीजिए, वो भी सुना रहा है, वर्डमाला सुना रहा है। गिनती सुना दीजिए, टेबल सुना दीजिए, काउंटिंग सुना दीजिए, बच्चा सुना रहा है सुभान अल्लाह। इसके आगे कभी ये भी पूछ लीजिए, बच्चा तौहीद किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, बेटा इस्लाम किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। यह है हमारे यहाँ पर पूछने, हम पूछते ही हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। पूरी जिंदगी अपनी औलाद पर मेहनत करने के बाद आखिर वक्त में अपनी औलाद से सवाल करते हैं, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे, बताओ अपने आप, जवाब दो। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। कहा कि हम इबादत उस रब्बुल आलमीन की करेंगे जिसकी इबादत हमारे आबा व अजदाद इब्राहीम, इसहाक़, इस्माईल इन्होंने किए, जो सिर्फ एक ही तन्हा माबूद है, उसकी हम इबादत करेंगे। सिर्फ इलाह की बात नहीं की, बल्कि अपने अंबिया जो आबा अजदाद में से थे उनका तस्करा किया कि जिनकी इबादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसकी इबादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर, उसी रब की इबादत हम करेंगे। सवाल करें अपने बच्चों से, सवाल करें बच्चों से कि तौहीद क्या है। शिर्क के बारे में भी एक सवाल आया है और जिससे हमें अपनी औलादों को बचाना है, खुद को अपने आप को बचना है, क्योंकि इसका
خطرناک ہی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ شرک کو سمجھنا، اس کی شکلوں کو جاننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بچانا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا یہ بہت بڑا اہم حصہ ہے کہ شرک سے بھی معاشرے کو پاک کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ شرک کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کچھ اس کے سلسلے میں عرض کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک الگ سے طویل موضوع ہے، اس میں الگ سے ایک بحث لمبی ہو سکتی ہے، تاکہ ساری جزیات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ کبھی کسی ٹائم اس کو پورا مستقل شرک کے اوپر ہی موضوع رکھیں گے، اور آپ سبھی کی انشاءاللہ دعوت بھی دیں گے۔ شرک کے سلسلے میں دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، سادہ سا مفہوم سمجھ لیجیے، اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بندوں کو دے دیا جائے۔ خالق کا جو حق ہے، خالق کا حق مخلوق کو دے دیا جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ خالق کا حق کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا حق یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ ما حق اللہ علی العباد، بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ کس کے؟ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ حق اگر کسی دوسرے کو دیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شرک میں چھوڑا نہیں جاتا ہے، رب کو مانا جاتا ہے، رب کو ایک ہی مانا جاتا ہے، رب کے لیے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے جو بندے ہیں، نیک بندے، ان کے لیے وہ کام انجام دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثلا دعا اللہ کا حق ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، سب جانتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا۔ اب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہے، بزرگان کو پکارتا ہے۔ دیکھیے پکارنے کا مطلب، اگر میں یہاں سے آپ میں سے کسی آدمی کو پکاروں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ میری بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن غائب میں پکارنا، ایسا پکارنا منع نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ میں پکاروں آپ کو کہ بھائی ہمیں تھوڑا ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے مدد بھی آپ سے طلب کی اور آپ کو کال بھی کیا، یہ شرک نہیں۔ لیکن غائب میں پکارنا، یہاں پر آپ موجود نہیں ہیں اور پھر میں پکاروں آپ میرے مدد کر دیجئے، آپ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے فلاں چیز دے دیجئے، میری جو ہے کاروبار میں ترقی کرا دیجئے، اس قسم کی، یا یہ کہنا آپ اللہ سے کہہ دیں، یہ سارے کی ساری چیزیں، کیونکہ کہیں گے جب سنیں گے، کہیں گے جب سنیں گے، جب سنی نہیں تو کہیں گے کس سے؟ اور غائب میں صرف رب کو پکارا جائے گا۔ مثال ایک دیکھ لیں، کوئی شخص سمندر پر سفر میں گیا ہوا ہے، کشتی اس کی پھنس گئی، اب اس کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور وہاں کوئی انسان آدم نہ آدم ذات، چاروں طرف پانی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، اب وہ کس کو پکارے گا؟ وہاں پر اس کا امتحان ہے، وہاں پر صرف رب العالمین کو پکارے گا، اور کیونکہ غائب میں کوئی نہیں سن رہا ہے اس وقت،
इसी तरीके से वहां पर किसी और को पुकारना, अल्लाह के किसी नेक बंदे को पुकार लगाना, आप हमारा बेड़ा पार कर दें, बेड़े तो देखो अल्लाह ही पार करने वाला है। जिसके पास जो चीज नहीं है वो नहीं दे सकता है। क्या मतलब? पुकार, दुआ ये अल्लाह का हक है, ये किसी और को देना ये शिर्क है। और को देना ये शिर्क है। मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का, मक्का के काफिर जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल समझाया, आपके साथ लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, मुखालफतें हुई और दोनों तरफ से लोगों को कत्ल किया गया, मुसलमान शहीद हुए और मुशरिकीन कत्ल किए गए। आप ये देखें उन लोगों का अकीदा कुरान ने बयान किया है। पुकार और दुआ के मामले में उनका अकीदा कुरान ने बयान किया है। अल्लाह फरमा रहा है फइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। यही मुशरिक मक्का के खुशकी में तो इस माबूद को भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उस पर भी चढ़ावा करना है, उससे भी कुछ लेना है। लेकिन जब यही लोग समंदर पर सफर करते हैं, समंदरी सफर के लिए जाते हैं और वहां उनकी कश्ती भंवर में फंसती है, मौजुन कज़्ज़ुलल वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और वो गुमान कर लेते हैं कि अब घेर लिए गए मुशरिकीन मक्का। तो अल्लाह फरमा रहा है फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो फिर खालिस अल्लाह को पुकारती हैं। ये तौहीद है। और कहते थे लइन अंजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अगर तूने हमें निजात दे दिया तो अल्लाह हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। यानी जो चीज हम कर रहे थे शिर्क को नहीं करेंगे, अल्लाह निजात देते था फिर उसी पर वो लग जाते थे। यानी खालिस अल्लाह को पुकारते थे समुंदरों में, मुसीबत में, जब वो देखते थे कि अब यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन खुशकी पर अल्लाह के अलावा दूसरों को भी पुकारते थे। तो ये पुकार, दुआ, ये महज अल्लाह का हक है, ये किसी और के लिए दिया जाए ये शिर्क है। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, शक्लें हैं जो शिर्क के दायरे के अंदर आती हैं। इतना समझ लीजिए जो हक अल्लाह का है वो बंदों को दे दिया जाए, ये शिर्क है। लिहाजा इसीलिए कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म है और जुल्म अजीम है। जुल्म का माना यही है कि वदउ शैइ गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी जगह पर ना रख के दूसरी जगह पर रखना, यह जुल्म है। इसलिए शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह का जो हक था तुमने दूसरी जगह जाकर के रखा है, और अल्लाह का चूंकि हक है इसलिए जुल्म तो है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरी चीज होती तो जुल्म होता, लेकिन इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है कि अल्लाह का हक जो था उस जगह पर जहां होना चाहिए दूसरी जगह पर रख करके जो है इंसान आगे बढ़ जाता है। तो ये शिर्क का मामला है। इस्लाह माशरा के लिए बहुत ही इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने गुफ्तगू रखने की कोशिश की है, ताकि एक मैसेज आप लोग लेकर के जाएं। अगर वाकई में हम इसके लिए फिक्रमंद हैं और चाहते हैं तो अफराद की मजबूती, अफराद की इस्लाह हमारे समाज की इस्लाह का बायस बनेगी। अफराद की इस्लाह अगर नहीं होगी तो माशरा कभी भी सालेह और नेक नहीं हो सकता है। पैगंबरों ने जद्दोजहद की और मुश्किलात बर्दाश्त की, सारे ताने सहे हैं सब कुछ, लेकिन माशरे की इस्लाह के लिए इन उरीदु इल्लल इस्लाह, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं देखो मेरा इरादा सिर्फ इस्लाह का है, इस्लाह चाहता हूँ माशरे की। पैगंबरों ने इस्लाह की है माशरे की। अब वो पैगंबरों के बाद जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हमें इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और कैसे निभाना है उसका कुछ तज़किरा मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला करीम हम सबको जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मौला करीम हम सब के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा। मौला करीम जो लोग अपना वक्त को फारिग करके आए हैं, अल्लाह ताला उनके दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के ऊपर चलने को आसान फरमा दे। मौला करीम माशरे को हमारे पाक फरमा दे बुराइयों से, बदअक़ीदी से, और जिस किस्म की बुराइयाँ हैं मौला करीम पाक फरमा दे। और जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहें मौला इस्लाम पर रहें, और जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।